الرحيم وبه نستعين وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد کافی وقت ہو گیا ہے ان کا خیال جس جذبے سے اور شوق سے آپ حضرات یہاں اکٹھا ہیں اور آج قرآن کے مکمل کرنے کا جو حوصلہ آپ کے اندر رہا ہے اس کی بنیاد پر مجھے بھی کچھ دیر بات کرنے کا جذبہ ہے ایک مسئلہ ہوا ہے بہت ہی مختصر انشاءاللہ ایک پہلو آپ کے سامنے رمضان اور تراویح سے متعلق ہمارے محترم مفتی منور صاحب لفظی نے رکھ دیا دوسرا ایک پہلو خوش نصیب ہے آپ تمام حضرات جنہوں نے قرآن مجید کو سنا اور وہ ہمارے تینوں مسلمانوں جنہوں نے قرآن مجید کو سنایا آپ کو وہ بھی بےحد خوش نصیب ہے قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی ماہ مبارک میں اسے نازل کیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اسی رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن اتارا تو قرآن سے اس ماہ مبارک کا بھی بہت گہرا ہے بہت مضبوط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے رمضان مبارک میں جبرائیل امین کے ساتھ قرآن مجید کا مذاکرہ کرتے ہیں سنتے سنا کرتے ہیں یہاں تک کہ آخر عمر میں 2 بار آپ نے یہ عمل کیا تو ہمیں اور آپ کو قرآن سے اپنے رشتے کو جوڑنے کا یہ بہترین موقع ملا قرآن ہم نے سنا ایک متعین وقت میں ایک نماز میں ایک جذبے سے ہم اکٹھا ہوئے اب اگلا 20 دن ہمارے سامنے اس میں ہم قرآن مجید کو اپنے ہاتھوں میں لیں اور اسے پڑھیں قرآن مجید کو لیں اور اس کے الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کریں بہت سارے لوگ بہت تیز پڑھ لیں گے اور بہت سے لوگ آہستہ پڑھیں گے کوئی فرق نہیں ہے کوشش کیجیے پڑھنے کی جو نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ سنیں قرآن مجید کو اب گنجائش نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں میں تو پڑھ نہیں سکتا سننے کے بہترین مواقع ہیں کہ قرآن مجید کو سنیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کے موجودہ حالات میں ہم اور آپ نشانے پر اصل ہم آپ نہیں نشانے پر یہ قرآن نشانے پر اللہ کا دین نشانے پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نشانے پر ہے اسلامی تہذیب و تمدن اور اسلامی تاریخ نشانے پر ہے ہم آپ کیا ہیں تھوڑی سی زندگی ہے گزر جائے قوم کو مٹا نہیں سکتا ہے کوئی یہ سب کو پتا ہے آزمائشیں مشکلات سب کی زندگی میں رہتی ہے لیکن اصل جو نشانے پر ہے وہ قرآن ہے یہ اللہ کا دین ہے اس کے لیے ہمیں کچھ کرنے کی ذمہ داری ہے ہم پریشان ہوتے ہیں جب کوئی چیز سنتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے لیکن کیا کبھی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کتاب جو ہمارے گھر میں رکھی ہوئی ہے وہ قرآن جسے ہم عظمت کے ساتھ اپنے گھر پر رکھتے ہیں اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وہ ساری باتیں کہتی ہیں جو ہمارے لیے اور اس دنیا کے لیے مفید ہے ضروری ہے اسی میں ناکامیوں کا علاج ہے اسی میں پریشانیوں کا علاج ہے اسی میں ہمارے لیے راستے ہیں اسی کے ذریعے ہم دنیا کو بتلا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اللہ کا دین ہے وہ سب کے لیے مفید ہے اسی قرآن سے ہم لوگوں کو بتلا سکتے ہیں ہم کو کنڈم کر سکتا ہے انسان ہمارے کردار کو کنڈم کر سکتا ہے ہماری باتوں کو کنڈم کر سکتا ہے لیکن قرآن کے اندر وہ طاقت ہے کہ قرآن کی باتوں کو جلدی کوئی کنڈم نہیں کر سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی میں جو سب سے آگے تھے وہ بھی قرآن مجید کو سن کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لیتے
वही कुरान मजीद हमारे पास मौजूद है। जितनी भी मुखालफत होगी दीन की, इस्लाम की, मुसलमानों की, मुसलमानों के पास ये कुरान अल्लाह का वो तोहफा है, वो मशीन है जिसको कहिए आज के जमाने में, वो ताकतवर चीज है कि अगर इस कुरान से हमारा रिश्ता मजबूत है तो हम दुनिया को आईना दिखा सकते हैं, दुनिया को समझा सकते हैं। लेकिन कब? जब हम कुछ वाकिफ होंगे, जब हम कुछ जानेंगे, जब हम कुछ समझेंगे। कुरान की एक सूरत 10 आयतें हम समझेंगे तो कम से कम किसी से कह सकेंगे कुरान में ये कहा गया। लेकिन अगर हम कुछ नहीं जानेंगे तो हम क्या करेंगे? आज हमारी सूरत हाल ही होती है। हर वक्त हमें मौका है कि लोगों से हम कुछ न कुछ कुरान के हवाले से बात कर ले, अल्लाह का कलाम लोगों को बतला दे, लोगों से कुछ कह दे, लेकिन हमें मालूम नहीं होती। हम अरबी में कुरान पढ़ लेते हैं लेकिन उसकी कोई बात हमें उर्दू में नहीं याद है, अपनी जुबान में नहीं याद है, सामने वाले की जुबान में नहीं याद है कि हम उसके सामने रख सके। हम अपनी बातें करते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं, देर तक बहस करते हैं, घंटों बातें करते हैं। आप मुझे बताइए, हम अपनी बातों से क्या दूसरों को मुतमईन कर लेंगे? क्या हम अपनी बातों से दूसरों को मुतासिर कर लेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना मामूल था जो इतने आला मकाम पढ़ते, इतने आला मकाम पढ़ते, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज क्या था कि बड़े से बड़ा दुश्मन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई एतराज लेकर, कोई सवाल लेकर, कोई टेढ़ी मेढ़ी बात लेकर के आता और कहता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़कर सुना देते। वो अरबी जानते थे, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की वो आयत मुंतखब कर लेते थे जिसे उसे सुनाना होता था, और वो फौरन समझकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस को छोड़ देता था। आपको याद होगा नजाशी के दरबार में कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं है, उसमें वही बात है कुरान मजीद की जो कुरान ने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा था, वही सहाबी ने पेश कर दिया। क्या किया नजाशी ने? क्या हुआ मुसलमानों के साथ? साफ उसने कहा कि हाँ, इस कुरान में जो कलाम आप पेश कर रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं, तो वही है जो हमारे नबी के बारे में सबसे अच्छी बात है। तो आज भी दुनिया के बारे में, दुनिया के मज़ाहिब के बारे में, दुनिया की तमाम चीजों के बारे में जो हमारे लिए मुश्किल बन रही है, जिसको पेश करके सुन करके हमें गुस्सा आता है, तकलीफ होती है, हमें तकलीफ पहुंचाने के लिए कही जाती है, उन सब के ताल्लुक से कुरान मजीद में बहुत ही अच्छी गुफ्तगू मौजूद है, लेकिन हम ना जानने की वजह से उसे पेश नहीं कर पाते। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? कुरान हम इतनी मेहनत से पढ़ते, सुनते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। कुरान का हक है कि सुने, उसे सुने, बार बार सुने, बार बार पढ़े। है ही उसका नाम कुरान कि उसे पढ़ा जाए बार बार, उस पर अजर है, सवाब है, उसकी हमें जरूरत है। लेकिन इस कुरान की जरूरत हमें मैदान में भी है, इस कुरान की जरूरत इस मुल्क में भी है, इस कुरान की जरूरत हमें इस सोसाइटी और समाज में भी है। इस कुरान की जरूरत इस दुनिया में रहने और बसने वाले इंसानों को है। ये अमानत है हमारे पास कुरान मजीद। अगर साहबे किराम कुरान मजीद को अपने तक रखते तो क्या आज हम तक पहुंचता था? ये अच्छी किरत आपने सुनी है, इमाम साहब ने आखिर में जो किरत की है, ये शानदार किरत की रिवायत क्यों चली आई? क्योंकि लोगों ने सिखाया दूसरों को। आज अगर दुनिया को हम कुरान नहीं पेश करेंगे और अपने पास रख के बैठ जाएंगे तो कुरान से लोग महरूम रह जाएंगे, और ये महरूमी का जुर्म किसके सर जाएगा? हमारे और आपके सर जाएगा। आप सोचेंगे उलमा ये काम करेंगे, उलमा कितने ये काम कर पाएंगे? कितने उलमा है जिससे दूसरे लोग बातें करते हैं? गैर मुस्लिम आम लोगों से, आप लोगों से ज्यादा बात करता है, उलमा से बात करते हुए एहतियात करता है। आपकी जरूरत है कि आप कुरान को कुछ जाने, कुरान को कुछ समझे भी। 20 दिन आगे है, कुरान से अपना रिश्ता मजबूत रखें, कुरान की तिलावत करें, कुरान से कहीं न कहीं से बैठ करके उसे समझने की कोशिश करें। आज के हालात में कुछ कुरान की आयतें ऐसी याद कर ले, कुछ सूरतें ऐसी याद कर ले, कुछ बातें कुरान की ऐसी याद कर ले जो किसी के सामने जब आज के हालात में बात आए तो आप कह सके कुरान में ये कहा गया। हम नहीं कह रहे, कुरान ये कह रहा, अल्लाह ने ये फरमाया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये किताब नाज़िल हुई, उसमें ये कहा गया है। यकीन जानिए, अगर आज 20 से 25 करोड़ की आबादी में सिर्फ 1-2 करोड़ लोग ये काम करने लगे, यकीन जानिए कुरान को लोग
सीने से लगाना शुरू कर देंगे, कुरान पर लोग रिसर्च करना शुरू कर देंगे, कुरान को लोग पढ़ना शुरू कर देंगे। उन्हें पता ही नहीं कि इसमें कौन सा खजाना है जिस खजाने से लोग महरूम है और उसकी मुखालफत कर रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उसी हदीस पर मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी मिसाल और लोगों की मिसाल ऐसी ही है, जैसे बारिश हो तो 3 तरह की जमीनें होती है। एक वो जमीन जो बड़ी जरखेज होती है, बारिश हुई खूब अच्छा, उसमें सब पौधा उगाया और लोगों ने उससे फायदा उठाया, जमीन ने भी फायदा उठाया और उसने दूसरों को फायदा पहुंचाया। एक जमीन वो होती है जिसने पानी को रोक लिया, खुद तो उसने फायदा नहीं उठाया लेकिन लोगों ने उस जमीन से, उस पानी से फायदा उठाया। और एक जमीन वो होती है जिसमें पानी नीचे सब चला जाता है, न वो जमीन खुद फायदा उठाती है न रोकती है कि दूसरा कोई फायदा उठाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी मिसाल भी ऐसी है। आज आप खुद भी फायदा उठाइए, कुरान से फायदा उठाइए और कुरान से दूसरों को फायदा पहुंचाइए। आज ये उम्मत कुरान से खुद फायदा उठाने वाली नहीं है, इसलिए दूसरों को फायदा पहुंचाने वाली भी नहीं रहती। काश हम ये तय कर दो कि नहीं, इस कुरान से हम खुद भी फायदा उठाएंगे और इस कुरान से हम दूसरों को भी फायदा पहुंचाएंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में बात कही है वो हमेशा हमारे ज़हनों में रहनी चाहिए। और खास तौर पर आज के हवाले से जब कुरान के मुकम्मल करने की खुशी और सआदत हमें मिली है, ये नेकबख्ती हमें हासिल हुई है, अल्लाह ताला इस कुरान को क़यामत के दिन गवाह बनाएगा। ये कुरान सिफारिश करेगा हमारे आपके लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस कुरान के जरिए अल्लाह तुम्हें सरबुलंदी देगा और अगर इस कुरान का हक नहीं अदा करोगे तो पछताओगे में चले जाओगे। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि आज हमारे इकट्ठे हुए हैं, हम सब कुरान को जैसे अपने सीने से लगाते हैं, अपने सरों पे रखते हैं, अजमत देते हैं, वैसे कुरान से इंशाअल्लाह हम सब फायदा उठाएंगे। हमने कुरान को सुना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस कुरान को सुनने का कबूल फरमाए, ये हमारे लिए नेकी का जरिया बना दे। इस इदारे में जहाँ कुरान सुनने का एहतमाम किया गया है, इस इदारे के खैर को मजबूत कर दे। इस इदारे के कायमीन को, जिन्होंने इसको कायम किया, मुनज़्ज़म किया, अल्लाह ताला उन्हें साबित कदमी नसीब फरमा, उन्हें कामयाबी नसीब फरमा, उन्हें हर तरह के शर से महफूज फरमा। और जो लोग भी यहाँ शरीक हुए अल्लाह ताला कुरान की बरकतें उनके लिए दे, तो कुरान की सआदतें उनके खाते में लिखी। हम सब यहाँ कुरान के रिश्ते से इकट्ठा हुए हैं, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमा लो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अलैहि नबी